वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी तलासानी श्रीनिवास यादव ने हल्का असम्बली गोशा महल की आवाम से असम्बली इंतखाबात में बीआरएस के उम्मीदवार को वोट देकर उसे जीत दिलाने की अपील की है। नुमाइश मैदान में गोशा महल बीआरएस इंचार्ज नंदू बिलाल की क़यादत में एक इजलास मुनक़िद किया गया। तलासानी श्रीनिवास यादव ने इस मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और पार्टी कारकुनान के इक़दामात की भरपूर सताइश करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो आइंदा इंतखाबात में गोशा महल असम्बली हल्के से बीआरएस के उम्मीदवार को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाएं। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए पार्टी कारकुनान की जानिब से अनोखे इक़दाम किए गए थे। बीआरएस रहनुमा गडम श्रीनिवास भी पार्टी वर्कर्स के हमरा एक रैली की शक्ल में घोड़े पर सवार होकर जल्द से गाह पहुंचे। नमपली अदालत ने पुलिस ओहदेदार पर हमले के मामले में वाईएसआरटीपी सदर वाईएस शर्मिला को मशरूत जमानत दे दी है। जुबली हिल्स पुलिस ने पीर के रोज वाईएस शर्मिला को खातून पुलिस एहलकार को तमाचा रसीद करने पर गिरफ्तार करते हुए मुख्तलिफ दफात के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बाद अज़ां शर्मिला को नामपल्ली अदालत में पेश करते हुए 14 दिन की रिमांड हासिल की गई थी। शर्मिला चंचलगुड़ा जेल में महरूस थी, ताहम उन्होंने जमानत की दरख्वास्त दायर की थी और ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर करते हुए कुछ शराइत रखी है। अदालत ने बैरून मुल्क जाने के लिए वाईएसआरटीपी रहनुमा को अदालत की इजाजत हासिल करने को कहा है और 30,000 रुपये के मसलके दाखिल करने की भी हिदायत जारी की है। वाईएसआरटीपी रहनुमा वाईएस शर्मिला जेल से रिहा हो चुकी है। అసలు కేసీఆర్ కు పరిపాలన చేతనయ్యిందా? కేసీఆర్ కు సెక్రటేరియట్ కైనా ఎప్పుడైనా వెళ్ళాడా? మరి పరిపాలనే చేత కాలేదు కదా కేసీఆర్ కు. ఏం చేతనైంది కేసీఆర్ కు? రుణమాఫీ చేతనైందా? సున్నా వడ్డీకే మహిళలకు రుణాలు ఇస్తానన్నాడు, అది చేతనైందా? ఇంటికి ఉద్యోగం అన్నాడు, అది చేతనైందా? ఉద్యోగం ఇవ్వకపోతే నిరుద్యోగ భృతి అన్నాడు, అది చేతనైందా? డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు చేతనైందా? మైనారిటీలకు 12% రిజర్వేషన్ ఇస్తానన్నాడు, అది చేతనైందా? కోడు పట్టాలు ఇస్తానన్నాడు, అది చేతనైందా? 57 ఏళ్లకే పెన్షన్లు ఇస్తానాడు, అది చేతనైందా? అసలు ఏం చేతనైంది కేసీఆర్ కు? పరిపాలన చేతనైందా కేసీఆర్ గారికి? ఇచ్చిన ఒక్క వాగ్దానమైనా నిలబెట్టుకోవడం చేతనైందా కేసీఆర్ కు? ఏం చేతనైంది? అవినీతి చేయడం చేతనైంది కేసీఆర్. కమిషన్ల పేరు చెప్పి వేల కోట్లు అవినీతి సొమ్ము సంపాదించడం చేతనైంది కేసీఆర్ కు. ఆయన బిడ్డకు లిక్కర్ స్కామ్ చేయడం చేతనైంది, ఆయన కొడుకేమో రియల్ ఎస్టేట్ స్కామ్ చేయడం చేతనైంది. ఇక ప్రతిపక్షాలు గొంతు విప్పితే ఆ గొంతు నొక్కడానికి ఎంత దూరమైనా వెళ్ళడానికి వెనకాడడం అసలు కేసీఆర్ కు అసలు ఎంత నీచంగా ఈరోజు వ్యవహరించాడో ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. ఒక మహిళనయ్యుండి నేను చేయాలనుకున్నదల్లా సిట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక రిప్రజెంటేషన్ మాత్రమే ఇవ్వాలనుకున్నాం. ఈ సిట్ ఏదైతే ఉందో టీఎస్పీఎస్సీ క్వశ్చన్ పేపర్ లీకుకు సంబంధించిన కేసును ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్న స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీము. ఈ స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీంకి అసలు ఒకరు సామాన్య ప్రజలు కానీ ఒక ప్రతిపక్ష పార్టీ కానీ ఒక సూచన చేసే అవకాశం ఉందా లేదా? ఆ హక్కు మనకు ఉందా లేదా? ఇది ప్రజాస్వామ్య భారతదేశం అవునా కాదా? ఒక సిట్టుకు కూడా ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి కూడా ఈరోజు వీలు లేకుండా పోయింది కేసీఆర్ గారి బంగారు తెలంగాణలో. మరి ఇది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కాకపోతే ఏమనాలి? ఇది తాలిబాన్ల లాగా కేసీఆర్ గారు వ్యవహరించడం లేదు అనడానికి, ఇక వ్యవహరిస్తున్నారు అనడానికి ఇంతకంటే పెద్ద సాక్ష్యం ఇంకేదైనా కావాలన్నా? సిట్ దగ్గరికి వెళ్ళి రిప్రజెంటేషన్ మాత్రమే ఇవ్వాలనుకున్నాం. అసలు నాతో పాటు ఆ రోజు పొద్దున బయలుదేరితే నాతో పాటు అసలు ఎవరూ లేరు, నేను ఒక్కదాన్ని. పార్టీ కార్యకర్తలు లేరు, పార్టీ నాయకులు లేరు, ఎవరూ లేరు. నేను ఒక్కదాన్ని రిప్రజెంటేషన్ సిట్ ఆఫీస్లో రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికని బయలుదేరితే పోలీసు వాళ్ళు అసలు నేను ఒక మహిళను, వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీకి నాయకురాలు ఒక మహిళ అని పోలీసు వాళ్లకు తెలియదా? మరి ఒక మహిళ దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు కనీసం మహిళా పోలీసులను తీసుకురావాలన్న ఇంగితం కూడా లేకపోయింది పోలీసులకు. వచ్చిందల్లా మగ పోలీసులే, కేవలం 2 మాత్రమే మహిళా పోలీసులు ఉన్నారు. ఆ మగ పోలీసు కూడా
నా దగ్గరికి వచ్చి నా శరీరాన్ని తాకేంత దగ్గరగా వచ్చి కళ్ళు పెద్దవి చేసి నన్ను బెదిరించే ధోరణిలో మాట్లాడడం జరిగింది. ఇక మహిళా పోలీసులు అయితే అసలు మహిళలు అన్న కంపాషన్ కూడా లేకుండా ఇక తర్వాత 8 మంది 12 మంది ఎంతమంది వచ్చారో అంతమంది వచ్చి నా మీద బడి దాడి చేసి అసలు కొంతమంది ఏమో పుష్ చేస్తున్నారు, కొంతమంది ఏమో పుల్ చేస్తున్నారు, ముగ్గురేమో ఒక చేయి లాగుతున్నారు, ఇంకో ముగ్గురేమో ఇంకో చేయి లాగుతున్నారు, ఇంకొకరేమో నా చెయ్యి విరగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, మ్యాన్ హ్యాండిలింగ్ చేశారు. మహిళ అన్న కంపాషన్ వాళ్ళకు లేదు, అసలు మహిళలు అన్న ఇంగితం లేకుండా అసలు మహిళా పోలీసులే ఇంత దారుణంగా వ్యవహరించారు. మ్యాన్ హ్యాండిలింగ్ అనాలా, విమెన్ హ్యాండిలింగ్ అనాలా, ఏమనాలి దీన్ని? అసలు విమెనే ఇంత నీచానికి పాల్పడితే, కంపాషన్ లేకుండా వ్యవహరిస్తే ఇంకొక మహిళ పట్ల దీన్ని ఏమనాలి? అసలు ఈరోజు ఇంత దారుణం చేశాడు కేసీఆర్ గారు. ఒక మహిళ మీరు ఉద్యోగం ఇస్తానని చెప్పారు, మీరు ఉద్యోగాలు ఇవ్వకపోతే, ఇంటికో ఉద్యోగం మీరు ఇవ్వకపోతే, నిరుద్యోగ భృతి మీరు ఇవ్వకపోతే, ఇచ్చిన మాటలన్నీ తుంగలో మీరు తొక్కితే, ఒక మహిళ ఉండి రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డగా వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ స్థాపించి మళ్ళీ ఆ రాజశేఖర రెడ్డి గారి పాలన తీసుకురావాలి అన్న తపనతో మేము కష్టపడుతుంటే, మేము దీక్షలు చేస్తుంటే, మేము పోరాటాలు చేస్తుంటే, ఈరోజు మమ్మల్ని ఆపడానికి పోలీసులను మీ కుక్కల్లాగా, మీ తొత్తుల్లాగా వాడుకుంటున్నారే కేసీఆర్ గారు. रियासती वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी तलासानी श्रीनिवास यादव की जेर सदारत मंदूबीन का एक इजलास मुनक्किद किया गया। महबूब कॉलेज के SVIT ऑडिटोरियम में सनत नगर हल्के के BRS मंदूबीन का इजलास मुनक्किद हुआ। वजीर बराए अफजाए से मवेशियाँ वो सनत नगर रुकन असम्बली तलासानी श्रीनिवास यादव ने इस इजलास की सदारत की। उन्होंने BRS पार्टी परचम की नकाब कुशाई की। इजलास से कबल सभी ने शोहदा की याद में 2 मिनट की खामोशी अख्तियार करते हुए उनकी कुर्बानियों को याद किया। కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఉద్యమం జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో విద్యార్థులు, యువకులు, ఎంతోమంది పెద్దలు మరి ప్రాణత్యాగం చేసినటువంటి అమరుల కోసం 2 నిమిషాలు మౌనం పాటిద్దాం. అందరూ దయచేసి నిల్చు. तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने बेरोजगारों का साथ देने और एक ही दिन में 4 इम्तिहानात मुनक्किद करने के मामले पर हुकूमत को मकतूब रवाना करने की यकीन दहानी करवाई है। रियासती हुकूमत की जानिब से कांस्टेबल, कम्युनिकेशन कांस्टेबल, AE और जूनियर लाइनमैन के इम्तिहानात एक ही दिन में यानी 30 अप्रैल को मुनक्किद किए जा रहे हैं। एक ही दिन में 4 इम्तिहानात मुनक्किद करने पर उम्मीदवार तशवीश में मुब्तला है। मुलाजिमतों के हुसूल के लिए इम्तिहानात लिखने वाले उम्मीदवारों ने बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार से मुलाकात करते हुए उन्हें इस मसले से वाकिफ करवाया। उन्हें बताया कि तालीमी काबिलियत रखने के बावजूद भी एक ही दिन में 4 इम्तिहानात लिखना उनके लिए मुनासिब नहीं है और नुकसानदेह भी है। बेरोजगारों ने बंडी संजय से कहा कि वो रियासती हुकूमत पर इस मामले पर दबाव डालें। करीमनगर बीजेपी रुकन पार्लिमान ने बेरोजगारों की इस दरख्वास्त पर मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया है और उन्हें तयखुन दिया है कि वो हमेशा बेरोजगारी का साथ देंगे और इस सिलसिले में हुकूमत को एक मकतूब भी रवाना करेंगे। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने CM KCR पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए इल्जाम लगाया है कि रियासत में किसी भी प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया जा रहा है। मदुराई हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए गवर्नर ने प्रोटोकॉल पर अमल न किए जाने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि वजीर आला KCR ने 2 सालों में उनसे मुलाकात नहीं की, जबकि आइन कहता है कि इंतजामिया और गवर्नर की वक्तन फौक्तन बातचीत होनी चाहिए। CM और गवर्नर का साथ जरूरी है, लेकिन तेलंगाना में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। हुकूमत तेलंगाना के रवैये से नाराज तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि हर कोई गवर्नरों पर सवाल उठा रहा है, लेकिन वज़राए आला से कोई सवाल नहीं कर रहा है। रियासती वज़रा के भी गवर्नर से दूरी अख्तियार करने की उन्होंने शिकायत की। याद रहे कि गवर्नर और हुकूमत तेलंगाना के दरमियान सियासी रस्साकशी अभी भी जारी है। गवर्नर ने ज़ेर इल्तिवा बिलों में से 2 बिल हुकूमत को वापस कर दिए हैं और 1 बिल को मुस्तरद कर दिया है।
रियासती वजीर बराए इमारत व शुआरे वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हल्के बालकुंडा में बीआरएस पार्टी के आत्मीय सम्मेलन इजलास में शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक बालकुंडा हल्के के कई मंडलों में नुमाइंदों के नामों का इंदराज किया जा रहा है, जिसका रियासती वजीर ने मुआयना किया और ऐवान और पार्टी से मुताल्लिक किट्स फराहम करने वाली स्टॉल्स पहुंचकर भी तफसीलात हासिल की। वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वेलपुर मंडल के स्टॉल पर अपना नाम भी दर्ज करवाया और ऐवान नुमाइंदगान का शनाख्ती कार्ड भी हासिल किया। आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर वजीर ने तेलुगु तल्ली के मुजस्सिमे और यादगार शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। राज्यसभा के रुकन के आर सुरेश रेड्डी, बीआरएस के रियासती कायदीन जैसे डॉक्टर मधुशेखर, कोटापति नरसिम्हा रायडू, डीसीपी के वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना शांति कुमारी ने जिला कलेक्टर्स को गैर मौसमी बारिश से फसलों को होने वाले नुकसान का जायजा लेने और एक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। वजीर आला केसीआर के अहकामात के मुताबिक शांति कुमारी ने तमाम जिला कलेक्टर्स के हमरा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की और उन्हें खुसूसी ओहदेदारों को मुकर्रर करते हुए मंडल सतह पर फसलों के नुकसान का जायजा लेने की हिदायत जारी की। गुज़िश्ता दिनों से रियासत में हुई झालाबारी और बारिश के पस मंजर में उन्होंने कहा कि पीड़ से किसानों को मुआवजा देने के अमल का आगाज हुआ है। वज़ीर आला केसीआर ने भी ओहदेदारों को फसलों को होने वाले नुकसानात का जायजा लेने का हुक्म जारी किया है। याद रहे कि गैर मौसमी बारिश के सबब तेलंगाना में 2,28,000 एकड़ पर मुश्तमिल फसलों को नुकसान पहुंचा है। केसीआर ने फी एकड़ 10,000 रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। महेशवरी समाज महाराजगंज हैदराबाद की जानिब से 2 रोजा क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया जा रहा है। MMPL के तीसरे सीजन का आगाज 29 अप्रैल से होगा। महेशवरी समाज महाराजगंज की जानिब से अत्तापुर के प्लैटिनम होटल में जर्सी लॉन्च तकरीब मुनक्किद की गई और टीम्स के कप्तान को भी मुंतखब किया गया। MMPL में कुल 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा जूनियर टीम्स भी क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल रहेंगी। MMPL के इफ्तिताह के मौके पर समाजी जहदकार श्याम सुंदर बहेती, कृति भरादिया, माहिर तैराक बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। महेशवरी समाज महाराजगंज के सदर रामदेव सारदा, सेक्रेटरी नरेश भाटुडा ने मीडिया से बात करते हुए MMPL के इनेकाद से मुताल्लिक तमाम तर तफसीलात बताई हैं। इस मौके पर ट्रेजरर दीपक बलदावा, वाइस प्रेसिडेंट श्री राम नाविंदर के अलावा जॉइंट सेक्रेटरी रघुनंदन व दीगर भी मौजूद थे। जय महेशवरी समाज महाराजगंज हर बार की तरह यह तीसरा सत्र है कि हम लोगों ने MMPL क्रिकेट 2023 सीज़न 3 आयोजित किया है। इसमें हैदराबाद सिकंदराबाद से लगभग सभी डिवीज़नों से टीमें आ रही हैं। इस बार 14 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। इसके साथ हम लोगों ने इस बार थोड़ा महिलाओं को भी इस प्रारूप में साथ में लेकर ये आयोजन किया है, जिसमें एक टीम में 10 टोटल प्लेयर्स रहेंगे, जिसमें 8 मेन और 2 विमेन रहेंगे। महेश, आज महेशवरी समाज महाराजगंज द्वारा प्लैटिनम होटल अत्तापुर में जर्सी लॉन्च किया गया है, जिसमें 5-6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे क्रिकेट के अंदर, जो 29 और 30 अप्रैल को अत्तापुर स्टेट ड्राइव में होने वाला है। और उसके अंदर टोटल 4 टीमें रहेगी। उसके अंदर पूरे 10-10 प्लेयर रहेंगे। जो बच्चे लोग हैं 30 अप्रैल को सवेरे 9 बजे से उनका मैच स्टार्ट होगा। बच्चों में उम्र का कुछ ऐसा 7 से 12 साल है। एक थोड़ा बच्चों को इंस्पिरेशन मिलना, उसके लिए रखा गया है बच्चों के लिए। और जो रस्सी लॉन्च हुआ है, बच्चे भी उसमें काफ़ी खुश थे। शहरियाने हैदराबाद के लिए समर उत्सव मेला 2023 का पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मिर्जा रफीक बेग और मोइन अली की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी समर उत्सव मेला पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर मुनक्किद किया गया है। इस समर उत्सव मेले में बच्चों के लिए जहां हमा अक़साम के झूले दस्तियाब हैं, वहीं ख़वातीन के लिए ज्वेलरी, कपड़े और घरेलू आराइश की अशिया भी दस्तियाब हैं। मीडिया से बात करते हुए मिर्जा रफीक बेग ने इस समर एग्जीबिशन से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात बताई हैं। मिर्ज़ा रफ़ीक बेग हैदराबाद का रहने वाला हूँ। इस नेकलेस रोड पीपल प्लाजा में 20 साल से एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करता हूँ, आप लोग सब जानते हैं।
क्योंकि हर साल एक मेरे दिल में एक नई खुशी होती कि हैदराबाद के लोगों के लिए कुछ नया चीज़ पेश करूं, क्योंकि मेरे को मौका मिला है जब तक मैं एक एक चीज़ हर साल आपके लिए पेश कर रहा हूं। कभी ताजमहल बनाया मैंने, कभी वर्ल्ड कप का स्टेज बनाया, कभी और हर साल लास्ट ईयर रोबोटिक्स एनिमल्स पार्क दिखाया आप लोगों को। आपके नए नए चीज़ हर साल कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। इस साल एकदम बिल्कुल नई, एकदम ज़बरदस्त ऐसी चीज़ लाया, आपकी दिल खुश हो जाना। आपके हैदराबाद शहर में समंदर डेंगे, अपन समंदर को लेके आया मैं। आप बोलेंगे समंदर कैसा? अरे भाई समंदर बोल तो समंदर से मछली लेके आया मैं इम्पोर्टेड। एक एक बच्ची ऐसी है, 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए की बच्ची है। हम आज मेरी उम्र इतनी हो गई कि मैंने कभी ऐसी बच्ची को देखा नहीं हूँ। ऐसी मच्छी को मैं लाखों लोगों को दिखाने के लिए लेके आया हूँ। एक नहीं 672 वैरायटी की मच्छी समंदर से लेके आया है इसको। और यहाँ पर फिश टर्नल, आप दुबई, सिंगापुर, लंदन जो गए से लोग को शायद 100% मालूम है। हाँ, कुछ लोग ही गए होंगे, 1% 2% लोग। उनको दिखाना बोलने से मैं ऐसे ही सेटअप इधर बनाया हूँ। अंडर वाटर टर्नल, पानी के अंदर से जाना पड़ेगा आपको टनल में, पूरे फिशेस बच्चों को देखते हुए दिखाने के, और फुल एंजॉय आप इस बच्चों के साथ कर सकते हैं। इस साल का नया रमज़ान का तोहफा है सबके लिए। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला में बारिश होने के इम्कानात हैं। मौसमियात की जानिब से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक शहर हैदराबाद, निर्मल, राजन्ना, सिरसिला, निजामाबाद, करीमनगर, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, सिद्दीपेट, यदाद्री भोंगी, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, विखाराबाद, संगारेड्डी, कामारेड्डी और महबूबनगर में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेंगी और गरज चमक के साथ बारिश होगी। अपनी रिपोर्ट में महकमा मौसमियात ने कहा है कि इसी अरसे यानी 25 अप्रैल से 3 दिनों के लिए दीगर अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। साइबराबाद पुलिस ने तेलंगाना समेत दीगर रियासतों में जाली हिंदुस्तानी करेंसी नोटों को सर्कुलेट करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंदर ने सहाफियों से बात करते हुए रैकेट की गिरफ्तारी से मुताल्लिक बताया कि स्पेशल टास्क फोर्स, लॉ एंड ऑर्डर और एसओटी के एहलकारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इस रैकेट का पर्दाफाश किया है। उन्होंने बताया कि कलीदी मुलजिम के राजेश और नीलदास का ताल्लुक उड़ीसा और तिरुपुरा से है, जबकि दीगर मुलजिमान का ताल्लुक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से है। गिरफ्तार अफराद जाली करेंसी नोटों को एक टोली बनाकर सर्कुलेट किया करते थे। पुलिस ने इस 13 रुकनी टोली के कब्जे से 30,68,000 रुपये से जायद के जाली करेंसी नोट, 60,500 रुपये पर मुश्तमिल असली करेंसी नोट और 13 मोबाइल फोन्स जब्त कर लिए हैं। 2 చెస్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి, ఐటీబీఐ అండ్ ఆదర్శ్ అని. ఈ 2 చెస్ బ్యాంక్స్ సైబరాబాద్ లిమిట్స్లో ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఫేక్ కరెన్సీస్ ఏమన్నా వస్తే మనకి శాంపిల్స్ పంపించి దాన్ని ట్రాక్ చేయమని, లీగల్ యాక్షన్ తీసుకోమని ఎప్పటికప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో దీనికి సంబంధించి అబౌట్ 2.5 months బ్యాక్ ఈ ఫేక్ కరెన్సీస్ ఏదైతే బ్యాంక్స్ దగ్గర వస్తూ ఉన్నాయో అవన్నీ తీసుకుని దాన్ని అంతాగానే స్టడీ చేసి, అనలైజ్ చేసి ఒక టీమ్ ఫామ్ చేశాము. అసలు ఈ ఫేక్ కరెన్సీస్ అన్నది ఎక్కడి నుంచి వస్తూ ఉన్నది, దీన్ని ట్రాక్ చేయాలని చెప్పి మన డీసీపీ క్రైమ్స్ కల్మేష్ గారు అండ్ ఏసీపీ శ్యాంబాబు, ఎస్టీఎఫ్ వీళ్ళతో ఒక సపరేట్ టీమ్ ఫామ్ చేసి లాస్ట్ 2.5 months నుంచి వీళ్ళు వర్క్ చేస్తే మనకి ఈరోజు ఈ ఫేక్ కరెన్సీ ర్యాకెట్ ఏదైతే ఉన్నదో, ఇంటర్స్టేట్ ర్యాకెట్, అది మనము బస్ చేయడం జరిగింది, వీళ్ళు పట్టుకోవడం జరిగింది. టోటల్ 13 మెంబర్స్ని మనము అరెస్ట్ చేశాము. అరెస్ట్ చేసి అబౌట్ 30.68 lakhs వరకు ఫేక్ ఇండియన్ కరెన్సీ నోట్స్ మనము సీజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇందులో మనము చూస్తే ప్రధానంగా ఈ టీం ఏదైతే ఉన్నదో, స్పెషల్ టీం, ఈ టీం మనకి ఈ फेक करेंसीज తీసుకుని बैंक ऑफिशियल्स तेलंगाना के मंचरियाल में एक लड़की को हरासा करने के इल्जाम में एक नौजवान को संगसार करते हुए बेदर्दी से कत्ल करने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक दिन दहाड़े एक नौजवान को संगसार करते हुए मौत के घाट उतारने का वाकया जिले जगतियाल के जयपुर मंडल के इंदारम में पेश आया। लड़की के अफराद खानदान का इल्जाम है कि महेश कुछ दिनों से
नौजवान शादीशुदा खातून को ख्वाहिश पैगामात भेजकर हरासा कर रहा था। ये हौलनाक वाकया मौजू बहस बना हुआ है। जराये ने बताया कि महश को संसार करते वक्त वहां मौजूद लोग खामोश तमाशाई बने रहे। किसी ने इस वाक़े को रोकने की कोशिश नहीं की। ताहम इस मनाजिर को मोबाइल फोन में कैद जरूर कर लिया। कुछ लोगों ने 100 डायल कर पुलिस को इतला दी। पुलिस भी महश की मौत के तकरीबन 30 मिनट बाद मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस सिलसिले में तफसीलात इकट्ठा कर तफ्तीश का आगाज किया है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 15 अफराद हलाक हो गए हैं। महलूकीन की कुल तादाद 5,31,369 हो गई है। मरकजी सेहत महकमे के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना के एक्टिव केसेस में कमी देखी जा रही है। एक दिन में 2,303 केसेस कम रिकॉर्ड किए गए हैं। 24 घंटों में 6,660 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस की गई है। एक्टिव केसेस की तादाद 63,380 हो चुकी है। इस बीमारी से 24 घंटों के दौरान 9,213 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 4,43,11,078 हो गई है। शरह सेहतयाबी 98.7%, जबकि शरह अमवात 1.18% रही है। इस दौरान मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन भी जारी है। एक दिन में 4,943 अफराद को वैक्सीन दी गई है। कोरोना वैक्सीन लेने वालों की कुल तादाद 220,66,44,669 हो गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।